I saw early demos of Wukong 4 years ago. No investor in India has that kind of patience curve for a non-existent industry. People associate India with both art and development. But due to the education rat race in India, these have become fields that seldom intersect with each other. A developer would not care about storytelling or design, and an artist would not care about how their ideas are executed. Game development is the ultimate fusion of design and code. It has to be led by a person who understands both, along with a third skill, marketing. Unlike most things, it is not another engineering problem that can be outsourced to Infosys. And by the way, I 100% believe that it is technically possible to make a game like Wukong in India. People think we do not have the tech resources for that, and that's not true. Advancements in AI and Unreal Engine have made a lot of tech commoditized. Even Wukong, apart from its interesting storytelling and breathtaking graphics, is a pretty straightforward game. A lot of the problems they had to do the hard way have been solved for us. Because Wukong started development in 2018, they used motion tracking suits for animations, but now you can do animations using a tool called Move.ai. There are even a lot of websites where you can get animations from. Wukong developers actually had to go and take 3D scans of rocks and many other elements they had to include in the game. But you can already get these scans for free from Epic Games using Quixel Bridge, which provides 3D scans of numerous assets to add to the game environment. Similarly, you can also use the Unreal Locomotion system, which works really well as well. India has all the talent too. Many of the Hollywood blockbusters you watch, Interstellar or Avatar, were animated in India. Rockstar Games has a studio in Bangalore which worked on Red Dead Redemption 2. You would even find an inventory system as a plugin for Unreal Engine. However, the engineer needs to be an artist. Wukong's real strength is in its art direction and story. It is like a movie that you can play. It might not take 550 crores for us to make it, but there still needs to be a market for it. Lastly, even if we can solve all these problems, there are a lot of cultural roadblocks ahead. Wukong is based on Chinese mythology. Imagine if we did that in India. How many people would it upset? In God of War, you basically go around killing Norse gods. We can't even think about something like that. In Wukong, you can go bash up the 4 heavenly gods that a lot of people actually go pray to. I doubt the sensitivities of the Indian audience would allow that. There needs to be some amount of creative freedom for this to exist. The problem is, we need a founder type person. Yeah, but we don't need a story necessarily around gods. You can make up gods. There's a reason why, for example, Norse gods को दिखाया है butcher होते हुए और Greek gods को, because they don't exist. Nobody worships them anymore. Simple. If you want to make a game, let's say mythology को लेके, I don't understand why people also have to pick real religions. You can just make stuff up. Lord of the Rings, Harry Potter, 5,000 कहानियां हैं. If you're creative enough, make your own characters, create a universe. Game of Thrones. You don't have to use real religions, real gods. Completely create a different solar system. जाओ वहां पे जितने भगवान क्रिएट करने हैं, नए नाम दो, नए वो दो. यस, तुम क्या कर सकते हो? सिमिलर प्लॉट लाइन्स रख सकते हो, तुम सिमिलैरिटीज रख सकते हो, बट यू डोंट हैव टू बी लाइक कि ये सेम चीज है. यू नो, वी कैन ऑब्वियसली टेक फाउंडेशंस एंड टेक सम प्लॉट्स. तुम हिस्ट्री से कुछ चीजें उठा सकते हो. आई थिंक गेम ऑफ थ्रोन्स रियल हिस्टोरिकल, आई थिंक, आई डोंट नो विच वॉर्स, बट आई थिंक 2-3 वॉर्स से उसने रियल स्टोरीज से उठाई. उसने पूरी स्टोरी उसने गेम ऑफ थ्रोन्स लिखी, या सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर जो है. एज फार एज सेंसिटिविटी कम्स, व्हेन इट्स अ प्रैक्टिसिंग रिलीजन, यस इट विल बी अ प्रॉब्लम. तुम अगर कोई भी इंसान धर्म, अमेरिका में कोई बहुत पॉपुलर गेम बनाता है, उसमें तुम इफ यू गेट टू बुचर जीसस क्राइस्ट, आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ क्रिश्चियंस वुड हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम अक्रॉस द वर्ल्ड, बाय द वे. So why? Because Christianity is a practicing religion. Hinduism is a practicing religion. Billions of people practice it. Creativity also has something to do with creation. Create new things. That's creativity. In Greek mythology, there is no such character as Kratos. They created a character and they created a completely new story based on that character. I don't think cultural challenges are as strong as we may claim them to be, because again, what we need is insanely good storytellers and writers. Insanely good, talented. I'm pretty sure 1.5 billion के देश में भरे हुए हैं. I just think उनको भाई कोई जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके घर में चप्पलें बजा दी गई हैं और उनकी कहानियों को सुनने वाला कोई नहीं, और उनके अंदर से विश्वास हटा दिया गया, छीन लिया गया बेसिकली, कि आप लिख भी सकते हो. तो शायद कितने ज़्यादा खतरनाक म्यूजिशियंस हैं, क्रिएटर्स हैं, राइटर्स हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, इससे खतरनाक क्रिएटिव लोग हैं जो कि अभी कहीं जॉब कर रहे हैं. कोई अकाउंटेंसी में बैठा है, कोई शायद सीए है, कोई हो सकता है बैंक में बैठ के मैनेजर पीछे बैठा हुआ, वो देख रहा है, उसके दिमाग में आज भी स्टोरियाँ चलती हैं. हो सकता है अपनी वाइफ को सुनाता हो कि भाई एक बार कहानी आई थी मेरे दिमाग में, वाइफ भी सुनती हो, या कहानी तो ज़बरदस्त है. होता है.
और उसकी जिंदगी भर उसके जहन में, उसके दिमाग में रह गई वो कहानी, और वो कहानी कंप्लीटली न्यू यूनिवर्स उसने क्रिएट किया है. नॉट इवन लाइक क्रिएटिविटी भी लेवल्स है ना, उसको हिंदुइज्म से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी. कंप्लीट उसने अपना खुद का यूनिवर्स ही क्रिएट कर डाला. उस इंसान को ऑल व्हाट यू हैव टू गिव दैट पर्सन इज रियल जोग्राफिकल टोपोग्राफिकल मैप्स. तो वो वहां से बस, क्योंकि कुछ चीज़ होती हैं जो कि आपको सीखनी पड़ेंगी. तो वर्ल्ड दिमाग में बनाना और वर्ल्ड ड्राइंग जो होती है उसके लिए आपको रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा चीज़ें कॉपी करनी पड़ेगी. बात कि आप चीज़ें चेंज कर सकते हो. आपको भाई कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज या स्टेट्स आप इंडिया से उठा सकते हो, लेकिन आप स्टेट्स को फिर बाद में चेंज कर दो, उनके डिज़ाइन को, उनके बाउंड्रीज को और बॉर्डर्स को, एंड देन यू क्रिएट अ डिफरेंट यूनिवर्स. दैट्स इट. स्लाइड वेरिएशंस. जहाँ तक आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ फंडिंग. सेकेंड, इट इज़ अ मैटर ऑफ पीपल डोंट हैव ट्रस्ट. 4 साल बैठ के कि हमारा रिटर्न आएगा नहीं आएगा. यस, दैट इज अ वेरी बिग थिंग. तीसरा, यू नीड पाइनियर्स, विजनरीज इज द टर्म. तुम्हारा वो साइबर पंक का कौन इंसान है, हिडेयोमा कोजिमा या जो भी नाम है उस इंसान का, अपोलोजाइज इफ आई एम बचरिंग, दिस इज नॉट माय यूनिवर्स. ठीक है, सब चीज़ बारे में मुझे कुछ नहीं पता. लाइक दीज पीपल की अलग ही फैन फॉलोइंग है, अलग ही स्टूडियोज की अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग है, टीम्स की अलग लेवल की फॉलोइंग है. और वो जब टीम लीव करती है वो स्टूडियो को इंसान कहता है गया गटर में चला गया. लाइक आई थिंक गॉड ऑफ वॉर की जो टीम है उसको एक अलग ही लेवल से देखा जाता है. सेम जिसने फार क्राई बनाया तुम्हारा सेकंड और थर्ड, ये सब मुझे कुछ नहीं पता. छोटी छोटी चीज़ें जो पता है मैं उनसे वो करके दे रहा हूँ. तो अगर मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ. मेरे कहने का मतलब है कि भाई हम इन कल्चर्स में एक और चीज़ होती है कि देयर पॉपुलेशन हैज स्ट्रॉन्ग और देयर फैन पॉपुलेशन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन इवन फॉर द क्रिएटर्स जिन्होंने गेम्स, एपिक गेम्स क्रिएट किए हैं. और कंपनीज को, जैसे रॉक स्टार गेम को कहा जाता है फॉर सो मेनी रीजंस कि भाई ओके देव कम अप विद इनसेनली गुड गेम्स. एंड लास्ट चीज यही है कि एक गेम जो कि $20 से $40 का है खरीदने के लिए मास लेवल पे, कि वो स्टूडियो फिर प्रॉफिट में रहे. गेम्स आर नॉट लाइक मूवीज, उसमें इतनी सारी अक्रॉस चैनल्स पे बेच के इतना पैसा कमा ले रहे हो. गेम का आई थिंक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो है परचेसेस से डायरेक्टली. कितने लोग खरीदेंगे. एंड इन अ कंट्री जहाँ पे अगर ग्लोबली उसको आने में टाइम लग रहा है फेम पाने में, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, यहाँ पे लोग मोस्टली डाउनलोड करते हैं चीजें, खरीदते नहीं है. आई थिंक इवन साइकोलॉजिकली, कल्चरली, इवन अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन पे फॉर थिंग्स स्टिल पायरेट थिंग्स इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लाइक आई एम नॉट इवन इंक्लूडिंग द पीपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो कंप्यूटर ही नहीं अफोर्ड कर सकते, गेमिंग पीसी उनके पास है ही नहीं. सो आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट पीपल जिनके पास हैं गेमिंग पीसीज, बट द थिंग इज वी ऑल्सो कम फ्रॉम दैट कल्चर ऑफ कि बचा के रखना है. प्रिवेंशन, मैं क्यों खर्चा करूं, मैं यहाँ पे और सस्ते में ले सकता हूँ, यहाँ से तो मुझे फ्री में मिल जाता है. दिस इज द माइंडसेट. दैट्स व्हाई कोर्सेज बाहर बहुत हद तक भयंकर लेवल पे बिकते हैं. दैट्स व्हाई किताबें, सिंपल किताबें बेच के लोग मल्टी मिलियनर बने हुए हैं. लाइक थिंग्स आर डिफरेंट देयर, दैट्स व्हाई. एंड यहाँ पे तुम पहले तो ऑलरेडी चीज़ों का प्राइस इतना ज़्यादा कम होता है क्योंकि ऊपर प्राइस पॉइंट पे कोई खरीदना ही नहीं चाहता, तो तुम प्रॉफिट को ऑलरेडी इतना लो कर देते हो कि दूसरे इंसान का अमीर बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. Who at least has these 3 skills: development, design, and marketing. Now, if you have these 3 skills, you can do hundreds of other businesses in India and make tens of crores selling some old school offline stuff. Does it make sense for that person to take this bet? Why would they take the risk of being cancelled if you can do 100 other things and make more money? It makes no sense. Which is why I think if you pin the core of the selling point कि somebody wouldn't take the risk because they will get cancelled is I think a very poor core. Because like I said, creativity has no bounds. So you cannot pin creativity to कि Indian culture है हमारा और जो हमारी कहानियां हैं और तुम उनके साथ अगर खिलवाड़ करो, why are you only picking that as a source? You don't have to generalize that as creativity. Creativity also has very little to do with that. So an example could be a person, let's say किसी को बहुत ही गजब Indian mythological कोई game रखना है. You don't have to be like कि मैं महाभारत उठाऊंगा. No. You can take elements of Mahabharata and create a completely different story, new characters, new universe. But you can take a lot of, for example, narratives, motivations, like you can take a lot of humanity from that, brilliant storytelling from that, and venture into a new form of storytelling, which means कि you don't just copy it. You are inspired by it. And that's what creativity is. And you create something completely different, ending completely different, starting point completely different, motivations. But narratives तुम उठा सकते हो, motivations तुम उठा सकते हो, characters के inspirations तुम उठा सकते हो. तुम्हारे पास भीष्म पितामह है, दुर्योधन है, तुम्हारे पास इतने सारे complex characters हैं यार, सारी चीज़ों का कितनी इसमें almost हर चीज़ में एक सीख है, हर चीज़ में एक story है पीछे. There is a lesson, there are tragedies in it. So
it's filled with so much source material is what I'm trying to say. Creativity को हम ये कह नहीं सकते कि a person is not taking that risk because वो कह रहा है अरे मैं कोई भी धंधा कर लूंगा. That's just close mindedness, prevention based motivation. मैं नया कुछ करूं ही क्यों, मेरे को तो बस पैसा कमाना है. I don't think any person जिसको सिर्फ पैसा कमाना है वो गेमिंग कभी करेगा ही. The criticism is कि this is not meant for a person जिसको सिर्फ पैसा कमाना है. That's a very wrong person to be actually entering this business. You have to have a person who's like मेरे को global market में अपना नाम बनाना है, इंडिया का नाम बनाना है. एंड पैसा मोटिवेशन है श्योर, बट आई एम विलिंग टू वेट फॉर दिस गेम. यू नीड अ पेशेंट पर्सन जो किसी विजनरी को फाइंड करे, या फिर बहुत सारे लोगों पर उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा एंड वहां से कुछ लोग उभर के आएंगे. यू नीड अ पर्सन लाइक फॉर एग्जाम्पल टाटा, लाइक पीपल हु आर और इवन अंबानी, जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं कि वो ऐसे नहीं सोच रहे कि हम 4 साल वेट नहीं कर सकते, मेरा सारा इस पर टिका हुआ है. एंड मे बी इवन यंग बिलियनर्स, देयर आर सो मेनी यंग बिलियनर्स, बट आई थिंक when the priority is only greed, कि मेरे को बस पैसा कमाना है, तू संतरे बेच ले भाई, वो बेटर है मास स्केल पे. पैसा कमाना इज नॉट सम विजनरी बेस्ड गोल. फॉर एग्जांपल आई डोंट थिंक इलॉन मस्क ने जब स्पेसएक्स में घुसा उसका मेन मोटिवेशन था कि यार पैसा कमाना है यार. He went into those ventures because he really was interested. I think interest, intention सेंट्रल हो जाती है, जहां पे एक इंसान है जिसको है कि भाई अपने देश के लिए भी, अपने देश में भी भाई अपने को एक स्टूडियो क्रिएट करना है जो माइंड बेंडिंग कंप्लीटली अमेजिंग गेम्स बनाएगा, इनसेनली गुड स्टोरीज, जो चीज RRR ने करी. जिसको भी जो भी भूल गया है, बट अगर इसको याद है, RRR जब आई थी इट वाज इन एवरी सिंगल तुम्हारे पब्लिकेशंस में, फ्रॉम अटलांटिक टू न्यूयॉर्क टाइम्स टू, तुम जो सोच सकते हो, तुम आज टाइप करोगे वैरायटीज लेके, सब में दे वर जस्ट आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल्स एंड एवरी यूट्यूबर वाज कवरिंग इट. व्हाई? नॉट बिकॉज नेसेसरली फाइट सीन्स परफेक्ट थे, not because उसमें कुछ कॉमिकल एलिमेंट्स नहीं थे, कुछ फ्लॉज नहीं थे, but because it was new, it was novel, and it came from a different place. It was about friendship. It also slapped very hard across the face तुम्हारे वो कल्चर के, to a great degree. सब लोग ये कह रहे थे कि this is what Avengers और Marvel have forgotten. कि at the end like एक intense सुपर हीरो मूवी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये है. Sure, it has flaws, छोटी मोटी चीजें हैं, काफी चीजें exaggerated हैं, but as an action movie on a giant scale, this just performs. And that's what I'm saying, कि ये चीज को तुम्हें वहां पे लाना है कि भाई ऐसा हमें प्रोडक्ट क्रिएट करना है गेमिंग में. That would be your motivation. कोई इंसान अगर सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, सेम बात जो तुम अभी कह रहे हो, like they should probably just do that. It has nothing to do with being cancelled. I don't think the choice is between being cancelled और पैसा कमाना. I think being cancelled is a very specific choice, जिसमें अगर आप खुरपेची करोगे तो आपको चांटा पड़ेगा, और पढ़ना भी चाहिए. वो क्यों खुरपेची कर रहे हो? प्रैक्टिसिंग रिलीजन है वो. कॉमन सेंस तो लगाओ. ग्रीक मिथोलॉजी और नॉर्डिक मिथोलॉजी प्रैक्टिसिंग रिलीजन थोड़ी है. बट अगेन तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ अदर्स आइडियाज हैं दैट यू कैन स्टार्ट, यू कैन बिल्ड ऑन. तुम सिंपल गेम बना सकते हो, हॉरर गेम बना सकते हो. तुम इतनी सारी कहानियां, हमारी विक्रम बेताल से लेके तुम्हारे इतनी सारी चीजें हैं जो कि कोई ऑफेंड नहीं हो रहा. भाई बनाओ, तुम्हें कोई रोक रहा है? यू नो, फॉर एग्जाम्पल इवन OTT पे विक्रम बेताल स्टार्ट करो वापस. क्या भयंकर कॉन्सेप्ट था उसका. हॉरर प्लस हॉरर, थ्रिलर, विजडम, सस्पेंस, लाइक उसमें सेंस भी है, विजडम भी है, बट एक बहुत भयंकर हॉरर एलिमेंट भी है. भाई तुम्हारे पास ऐसी स्टोरीज हैं. मेरा कहने वाला भी है कि जिससे कोई ऑफेंड नहीं होने वाला. तो ऐसे आइडियाज भरे हुए हैं. पॉइंट है कि मोटिवेशन कैन कम फ्रॉम प्लेसेस, वेरी रियल प्लेसेस, एंड दैट्स व्हाट आई मीन. कि तुम महाभारत के कैरेक्टर से मोटिवेशन लेके तुम कंप्लीटली न्यू कैरेक्टर्स बिल्ड कर सकते हो और कोई ऑफेंस नहीं लेगा. सो आई थिंक बॉटम लाइन इज व्हाट यू नीड इज अ पर्सन हु वांट्स टू चेंज द गेम. वो मोटिवेशन है, नॉट अर्न मनी. अर्न मनी yes is obviously important and is a priority, but I want to change the game. I want to a person who also wants to be a global player, and उसका इंतजार करना है. मैं Need someone who already has a lot of money. Why do we only have pictures of men, by the way, as investors? A pattern develop हो रहा है यहाँ पे. And has these 3 skills. This is exactly what Game Science did. They developed successful mobile games and made money from it, and then developed a AAA PC game from that experience and revenue. But in India, we built the mobile game developers for not making a AAA PC game. A lot of companies like Gameberry in India are currently making mobile games and making the best use of the Google Play Store to grow. We are counting on many of these developers to create AAA PC games in the future. As a video game fanatic and a proud Indian, I hope we are able to overcome these problems going forward. Because personally, I believe Indian history mythology is so rich and has so much to offer, probably more than any other country. It should be put out there for the world to see. But until that day comes, I would think twice before putting in my imaginary $100 million to build a AAA PC game in India, hoping that day comes soon. Great video, by the way.